Good morning, students and my dear friends. Today is 3rd of October 2022, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and Instagram. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is let improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। ब्रॉड बेस्ड रूल्स फॉर PEVCs ऑन द टेबल। What is PE and what is VC? PE stands for private equity and VC stands for venture capital. So basically this news is all about the venture capital and private equity investors. तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल पैनल सेट किया है, हाई लेवल मिनिस्ट्रियल पैनल एक्सपर्ट पैनल सेटअप किया है। किस लिए सेटअप किया है? फॉर एग्जामिनिंग द feasibility ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रॉड बेस्ड रूल फॉर AIFs. What are AIFs? That is alternative investment funds, जिसमें हमारे ये PE और VC फंड्स इंक्लूडेड होते हैं। बहुत टाइम से वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, दे वर फेसिंग सम चैलेंजेस एंड सम इश्यूज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। उन इश्यूज़ को, उन चैलेंजेस को टारगेट करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल पैनल सेटअप किया है, जहां पर हाई लेवल पैनल जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देगा ब्रॉड बेस्ड रूल्स पर, जहां पर जितने भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स मोड हैं, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी हो, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट हो, उनके लिए ब्रॉड बेस्ड रेगुलेशन लाया जाएगा। उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को इजी बनाया जाएगा, कंप्लाइंसेस को रिड्यूस किया जाएगा। अब ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को हम शॉर्ट में AIFs भी बोलते हैं। दीज आर द फंड्स क्रिएटेड और स्टैब्लिश्ड as a private pool investment vehicle in order to collect the fund from specific investors, generally high net worth individuals, as per our previously defined investment policies. तो बेसिकली प्राइवेटली कलेक्टेड और पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो पहले ही डिफाइन किया जा चुका होता है, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही स्पेसिफिक इंडिविजुअल से कलेक्ट किया जाता है। पूल फंड होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी आते हैं। माइंडेड स्टूडेंट, दिस AIF डज नॉट इंक्लूड द फंड दैट आर कवर्ड अंडर SEBI रेगुलेशन। SEBI regulation such as SEBI Mutual Fund Regulation 1996, SEBI Collective Investment Schemes Regulation 1998, or any other regulation of the board to regulate the fund management activities. इवन यूनियन कैबिनेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई बार कई सारे AIFs को अफोर्डेबल स्कीम्स के लिए, अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्रूव किया है। और AIFs भी कई कैटेगरीज में होते हैं, कैटेगरी 1 AIF, कैटेगरी 2 AIF एंड कैटेगरी 3 AIFs. Category 1 AIFs क्या होते हैं? These are the fund invested in business that are new or have a potential to grow financially, such as startups, MSMEs, and definitely government encourage investment into these ventures. Now, what are category 2 AIFs? Under this category, the funds that are invested in equity securities, debt securities are basically included. And these funds are not comes under category 1, cannot be invested under category 1 or category 3 of AIFs. And definitely government gives no concession into these types of investment. Just like funds of funds, debt funds, private equity funds, all these funds come under category 2. Now category 3 AIFs क्या होते हैं? So basically category 3 के अंदर ऐसे फंड्स आते हैं जो रिटर्न होते हैं बहुत शॉर्टर पीरियड में रिटर्न दे देते हैं। द फंड्स दैट गिव रिटर्न्स अंडर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, and definitely if they give returns on a very short period of time, these funds use complex and diverse trading strategies to achieve these return goals, such as hedge funds, private investment in private equity funds, and definitely these are the risky funds. Government do not give any sort of concession on these types of category 3 AIFs. तो 3 कैटेगरीज के AIFs होते हैं। अब आ जाते हैं न्यूज़ में। तो एज पर द
current regulation, these alternative investment funds do not have any broad-based regulations that requiring a large number of investors representations. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम इन प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स को देखें तो ये जनरली स्टार्टअप्स में और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ थोड़े ही इन्वेस्टर्स होते हैं, कभी कभी इवन एक इन्वेस्टर ही होता है, एक सिंगल इन्वेस्टर ही होता है। तो जो ये पैनल बनाया गया है जिसको जो 6 मेंबर पैनल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो कि सेबी के जो फॉर्मर चेयरमैन है मिस्टर एम दामोदरन वो चेयर करेंगे। ये पैनल बेसिकली इस इशू पर डिस्कस करेगा कि जो ये ब्रॉड बेस पैरामीटर्स हैं, रूल्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स पर एप्लीकेबल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो क्या जो ये ब्रॉड बेस पैरामीटर्स हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर एप्लीकेबल हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर एप्लीकेबल हैं, क्या यही सेम रूल्स AIFs में भी अप्लाई हो सकते हैं या नहीं? करंटली म्यूचुअल फंड्स हैव ब्रॉड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स और उसके अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड स्कीम को एटलीस्ट मिनिमम 20 इन्वेस्टर्स रिक्वायर हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसके अलावा एक सिंगल इन्वेस्टर 25% से ज़्यादा असेट होल्ड नहीं कर सकता एक सिंगल स्कीम में। तो ये जो ब्रॉड बेस रूल्स हैं ये म्यूचुअल फंड्स पे एप्लीकेबल, मतलब मीन्स 20 इन्वेस्टर्स मिनिमम रिक्वायर हैं फॉर अ सिंगल स्कीम और एक इन्वेस्टर के पास 25% से ज़्यादा असेट नहीं हो सकता है उस पर्टिकुलर स्कीम का। इट मीन्स कोई एक इन्वेस्टर डोमिनेटिंग इन्वेस्टर नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए इस तरह के कोई भी रूल AIFs पर एप्लीकेबल नहीं है। इसमें कभी कभी बहुत कम इन्वेस्टर्स होते हैं किसी किसी स्कीम में और कभी कभी तो एक सिंगल इन्वेस्टर ही होता है। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट चाह रही है कि जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनके लिए भी ये ब्रॉड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट करी जाएं और इसीलिए ये पैनल फॉर्म किया गया है। क्योंकि ऐसा इंप्रेशन जाता है कि जो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, अगर इवन कभी यह सिंगल इन्वेस्टर भी है एक किसी स्कीम में IF की, तो उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है कि वो वैल्यूएशन को, इन्वेस्टर वैल्यूएशन प्रैक्टिसेस को, नेचर ऑफ बिजनेस को, सेंस ऑफ इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट कर पाए। एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज़ एक्चुअली मैंडेटरी फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम्स, क्योंकि वो म्यूचुअली फंडेड स्कीम्स होती हैं और यही सेम गवर्नमेंट एप्लीकेबल करने की कोशिश कर रही है AIFs में। और गवर्नमेंट का मानना है कि इसके बाद से अगर ये ब्रॉड बेस्ड रिक्वायरमेंट और पैरामीटर्स एप्लीकेबल हो जाते हैं AIFs पे तो डेफिनेटली इट विल ईज द इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर एज वेल एज इट विल इनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और अभी के लिए पैनल है जो उसने अपना फीडबैक या अपना बैकग्राउंड वर्क या बैक एंड वर्क स्टार्ट कर दिया है। दे स्टार्ट आस्किंग फॉर स्टेक होल्डर्स, जो ऑडिटिंग फर्म्स हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, सेबी हैं, उन सब से उनके ओपिनियन और उनके सजेशन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। नेचुरल गैस प्राइस हाइक में पुश फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल। एज पर द एनालिस्ट सेंटर का जो एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है वो बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, दिस एक्सपेक्टेड टू राइज। उसका रीजन देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द डोमेस्टिक गैस प्राइसेस जो कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वीकेंड पे। उसकी वजह से जो गवर्नमेंट का एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है वो शूट अप कर सकता है। इफ़ यू आर लिटिल बिट अवेयर अबाउट द मैटर, 40% इंक्रीज रजिस्टर किया है डोमेस्टिक नेचुरल गैस के प्राइसेस में फ्राइडे को। 40% इंक्रीज रजिस्टर किया है जिसकी वजह से एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ये गवर्नमेंट के फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल को भी शूट अप करेगा। तो फिलहाल अब 6 मंथ के लिए जो ये नेचुरल गैस के प्राइस में इंक्रीज हुआ है ये 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। एंड इंडस्ट्री इंसाइडर एक्सपेक्ट 10 to 15% इंक्रीज इन पूल गैस प्राइसेस फॉर फर्टिलाइजर सेक्टर। तो इससे क्या होगा? इससे डेफिनेटली जो कॉस्ट है यूरिया को प्रोड्यूस करने की वो इंक्रीज होगी, क्योंकि गैस का जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 80% कॉन्स्टिट्यूट करता है रॉ मटेरियल कॉस्ट का फॉर प्रोड्यूसिंग द यूरिया। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज करेगी ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, अदर गैस की, तो डेफिनेटली यूरिया को जो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी। और अगर यूरिया की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उस पर भी गवर्नमेंट पर बर्डन पड़ेगा। और एनालिस्ट का ये कहना है कि जो बजट
था। बजट में अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ने 1.05 ट्रिलियन का एलोकेशन किया था फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए। एनालिस्ट का ये कहना है, जो लास्ट प्रोजेक्शन है उनके अकॉर्डिंग सारे फैक्टर्स को देखते हुए अप्रॉक्सीमेटली जो ये बिल है ये 2.3 ट्रिलियन तक जा सकता है। इट मीन्स जस्ट डबल हो सकता है एज पर द करंट सिचुएशन। सो दिस इज द नेचुरल गैस प्राइस मूवमेंट। हम देख सकते हैं अप्रैल 2019 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक का डेटा दिया हुआ है। अप्रैल 2021 से ये स्टार्ट होना शुरू हुआ है, हालांकि थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेकिन जो ओवरऑल प्राइस अगर हम देखें ब्लू बार तो ये इंक्रीज ही हो रहा है अप्रैल 2021 में। और इसका इम्पैक्ट हमें यूरिया प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फिनमेन कॉन्फिडेंट ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल ईयर 23 फिस्कल डेफिसिट इन चेक। अभी जस्ट पहले की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया कि जो 1.05 ट्रिलियन का बजट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था किसके लिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, वो 2.06 तक पहुंचने वाला है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर के जो एलोकेशन था उससे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर था उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। और इसी तरीके से बहुत और सारे सेक्टर में भी गवर्नमेंट का जो बजटेड एलोकेशन है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो उसी को देखते हुए कई सारे एक्सपर्ट ये कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर 23 का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि गवर्नमेंट का क्या टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए फिस्कल डेफिसिट का। तो कई सारे एनालिस्ट इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो ब्रीच होगा। लेकिन पॉलिसी मेकर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को लेकर के। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो ऑन गोइंग फिस्कल फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने जो टारगेट सेट किया है उसके आसपास ही रहेगी, उसको ब्रीच नहीं करेगी इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब अगर गवर्नमेंट या यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इस तरह की बात कर रही है कि फूड सब्सिडी इंक्रीज होने के बावजूद भी, फर्टिलाइजर सब्सिडी डबल होने के बावजूद भी टारगेटेड अमाउंट से, तब भी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो टारगेट में ही रहेगा, तो देयर माइट बी सम रीज़न। 3 रीज़न इसके पीछे बताए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। क्योंकि सबसे पहला अगर रीज़न डिस्कस करें, 3 रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहला रीज़न हेल्दी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। इसका मतलब गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है, जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है वो एंटिसिपेशन से ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स कलेक्शन एंटिसिपेट किया था, अपने बजट में जो टैक्स कलेक्शन एक्सपेक्ट किया था, कैलकुलेट किया था एडवांस टैक्स कलेक्शन, वो ज़्यादा हुआ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के टैक्सेस में कलेक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा दूसरा रीज़न क्या है, एक्सपेंशन इन नॉमिनल और इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी जीडीपी के नंबर में मॉडिफिकेशन किया गया है। नॉमिनल और इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी में कुछ एक्सपेंशन देखने को मिला, जिसकी वजह से भी जो है वो जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स हैं वो थोड़ा सा वेरी करेंगे। थर्ड रीज़न क्या है, सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर सेविंग एक्सपेक्टेड वाया सिंगल नोडल एजेंसी एसएनए डैशबोर्ड। तो जो एक्सपेंडिचर थे गवर्नमेंट के वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुए हैं थ्रू सिंगल नोडल एजेंसी। व्हाट इज दिस एसएनए डैशबोर्ड, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली कितना एक्सपेंडिचर इसमें रिड्यूस हुआ है, तो एज पर द ऑफिशियल दैट दे वर एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 40K to 50K करोड़ थ्रू एसएनए बोर्ड। इतना मतलब 40K to 50K करोड़ जो है वो सेविंग्स होगी थ्रू दीज एसएनए डैशबोर्ड। And government, central government has already held back allocation worth ₹1 trillion। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है 1 ट्रिलियन इससे सेव कर चुकी है, और आगे आने वाली कुछ स्कीम्स में जो एसएनए के थ्रू हैं उसमें भी ये सेविंग्स होगी, जिसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है उसको अचीव करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। What is this SNA? SNA is one of the new accounting mechanism in the public finance management system for the distribution of centrally sponsored related amount to state। तो basically ये new accounting mechanism है। इस नए mechanism के तहत states government को जो CSS means central sponsored scheme के तहत जो allocation किया जाता है वो allocation किया जाता है इस नए new accounting mechanism SNA के थ्रू। और
ऐसा कहना है ऑफिशियल्स का कि इस न्यू अकाउंटिंग मैकेनिज्म के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को कम पे करना पड़ रहा है स्टेट्स को, जिससे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें भी सेविंग हो गया। अप्रॉक्सीमेटली अभी तक गवर्नमेंट 1 ट्रिलियन की सेविंग कर चुकी है और 40K to 50K और ज़्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा है। What are these centrally sponsored schemes? Centrally sponsored schemes are jointly funded by center and the states government. तो उसमें कुछ सेंटर का पार्ट होता है, सेंटर को फंड करना होता है, कुछ स्टेट्स को फंड करना होता है। नए मैकेनिज्म के थ्रू सेंटर्स जो है वो ज़्यादा सेविंग कर पा रहा है थ्रू दिस SNA डैशबोर्ड्स, क्योंकि इस नए डैशबोर्ड्स के थ्रू न्यू अकाउंटिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो सेंटर मिनिस्टर हैं, जो सेंटर ट्रेजरी है, वो स्टेट्स ट्रेजरीज, डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर, इन सब का जो ग्रोथ है वो ट्रैक कर सकती है और उस ट्रैक के अकॉर्डिंग ये फंड रिलीज किया जाता है। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट के रिवेन्यू हैं वो सब्सटेंशियली इंक्रीज करेंगे, और इस इंक्रीज रिवेन्यू की वजह से जो फूड सब्सिडी और जो फर्टिलाइजर सब्सिडी में इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट वो फंड कर पाएगी। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अचीव कर पाएगी। सो दिस इज द प्रोजेक्शन अबाउट द फिस्कल डेफिसिट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री। को कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली टारगेट के आसपास ही रहेगा इस साल का फिस्कल डेफिसिट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। कैपेक्स ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स डिक्लाइन फर्दर इन Q2। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के टाइम पर किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मनी सप्लाई भी इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है, जिससे डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करती है। और पैंडेमिक के ड्यूरेशन में मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज थी, इवन गवर्नमेंट ने भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया था। और ऐसा कहा जा रहा था कि जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, जो कंपनीज हैं वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान को रिज्यूम करेंगी और इनिशियल कुछ टाइम से स्पेशली फाइनेंशियल ईयर में हमें एक अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। बट एज पर द रीसेंट डेटा, एक्सपेंडिचर्स ऑन न्यू प्रोजेक्ट स्लो डाउन फॉर द सेकेंड क्वार्टर इन अ रो। और उसका रीज़न रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज जनरेट हुई हैं, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी हाई हुई है, कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज भी हाई हुई हैं, जिसकी वजह से नाउ कंपनीज आर ऑल्सो स्लोइंग डाउन देयर फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि जब एक सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन थोड़ा सा सब्सिडाइज होगी तब जाकर के वो दोबारा से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगी। सो दिस इज द performance by the companies, or these are the performance or the capital expenditure in terms of new projects, completed projects and स्टॉल्ड प्रोजेक्ट। स्टॉल्ड मीन्स रुके हुए जो प्रोजेक्ट्स है। सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर तक का डेटा है। तो फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के 23 का तक का डेटा है, और Q2 का डेटा ये शो कर रहा है कि जो प्रोजेक्टेड था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, उससे डिक्लाइन हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो रहा है, उसका सीधा रीज़न है कि उसका इम्पैक्ट हमें मनी सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डिमांड पर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जियो में नॉट चार्ज प्रीमियम फॉर 5G। 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका और ऐसा कहा जा रहा था कि ऐसी कंपनी जो 5G सबसे पहले लॉन्च करेंगी, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन करेंगी, वो शायद प्रीमियम चार्ज कर सकते, प्रीमियम सर्विसेज के लिए चार्ज करें एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा पैसे लें फॉर दिस प्रीमियम 5G सर्विसेज। लेकिन एज पर द जियो, अभी इनिशियल स्टेज की लॉन्चिंग में जियो ने क्लियर कर दिया कि जियो किसी भी तरह के प्रीमियम चार्जेस नहीं लेगा फॉर इट्स 5G सर्विसेज। कंपनी विल रोल आउट 5G कमर्शियल सर्विसेज इन 4 cities, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता अराउंड दिस दिवाली। और ऐसा कहा जा रहा है कि एक जो कॉमन सर्विस चार्ज हैं वही लिए जाएंगे, नो प्रीमियम सर्विसेज, नो प्रीमियम चार्जेस। और अगर डेटा देखा जाए एग्जीक्यूशन को लेकर के, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन पीपल इंडिया में है जो उनके फ़ोन्स अभी 5G इनेबल्ड हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 मिलियन जो कस्टमर्स हैं या स्मार्टफोन यूज़र्स हैं वो हर साल 5G डिवाइस में अपग्रेड करेंगे। और इस ह्यूज कस्टमर बेस को टैप अप करने के लिए जियो जो है वो नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग और हुआवे जैसी कंपनीज के साथ टाई अप करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड टू एंड 5G टेक्नोलॉजी। सो लेट अस सी 5G का पेनिट्रेशन इंडिया में कैसे होता है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट। क्लियर 20% ऑफ ग्रीवियंसेस बाय अक्टूबर एंड CBDT टू IT। तो ग्रीवियंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2500 to 3
thousand taxpayer could be addressed and resolved between October 2 to October 31st। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CBDT भी बोलते हैं, उन्होंने टैक्स ऑफिशियल्स को टारगेट दे दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली 20% टैक्स पेयर्स का जो ग्रीवियंसेस है उसका 20% जो है वो आप अक्टूबर 30 तक रिजॉल्व कर लें या उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें। तो 20% मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2500 से 3000 टैक्स पेयर के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। सो CBDT ने अपने ऑफिशियल्स को बोल दिया है कि 20% का टारगेट आप इस पीरियड में अचीव करिए। ये सडनली ये CBDT ने क्यों ऐसा मूव लिया? क्योंकि रिसेंटली जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला है कि जितने भी पेंडिंग ग्रीवांसेस हैं, क्योंकि बहुत टाइम से जो टैक्स पेयर के ग्रीवांसेस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, एक ह्यूज पाइल जो है वो सेटअप हो गया, उसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे IT ऑफिशियल्स को बोला था कि जल्दी से जल्दी जितने भी ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। अगर बात करें कितना ग्रीवेंसेस पाइल्ड अप है, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 के टोटल टैक्स पेयर ग्रीवेंसेस IT रिसीव बिट फ्रॉम अप्रैल टू September 12 बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग इनटू द न्यू सिस्टम। इन्फोसिस ने जो नया इंटरफेस सेटअप किया उसकी वजह से भी ग्रीवेंसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। 15,000 मैटर्स जो हैं वो IT सिस्टम से ही रिलेटेड है, मतलब जो नया सिस्टम आया है, नया इंटरफेस आया, उससे रिलेटेड है। 13,000 ग्रीवेंसेस अभी तक पेंडिंग हैं। सबसे ज़्यादा ग्रीवेंसेस दिल्ली और मुंबई एरिया में देखने को मिले हैं। उसी को लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है ऑफिशियल्सों की जल्द से जल्द इन सारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हाउस पैनल फ्लैग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सेंड करी है ऑन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY योजना, और उसके तहत इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पाया कि दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर स्कीम में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। सबसे बड़ी पुअर प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इसके अलावा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड कंटिन्यू टू परसिस्ट। स्कीम अपने 3.0 और थर्ड फेज में ऑलरेडी इंटर कर चुकी है अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इस स्टैंडिंग कमेटी के अकॉर्डिंग 4 लाख में से 4 लाख जो सर्टिफाइड कैंडिडेट्स हैं उसमें से केवल और केवल 30,000 अप्रॉक्सीमेटली 30,000 यानी 7.7% कैंडिडेट्स को ही प्लेस किया गया है जून 30 तक। और अगर फंड यूटिलाइजेशन की बात करें, सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टोटल अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 686 करोड़ हैज़ बीन रिलीज्ड टिल नाउ एंड द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हैज़ बीन ओनली 294 अप्रॉक्सीमेटली। तो 686 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली सैंक्शन किए गए हैं अंडर दिस स्कीम, जिसमें से केवल 294 करोड़ का यूटिलाइजेशन यानी 43% का केवल अभी यूटिलाइजेशन हुआ है। तो ये दोनों जो रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो अभी अपने जो स्टेटेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाई है। एंड दिस इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसको लेकर के स्टैंडिंग कमेटी ने अपने सीरियस रिजर्वेशन रजिस्टर कराए हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। US प्लान्स $1.5 बिलियन अ मंथ एड टू यूक्रेन। So US is willing to support Ukraine directly now। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन की एड हर महीने प्रोवाइड करने का US ने अपना प्रस्ताव रखा है यूक्रेन के सामने। तो थ्रू आउट द वार अगेंस्ट रशिया US इज गोइंग टू नाउ सपोर्ट द यूक्रेन डायरेक्टली। और इसके लिए जो USA है वो अपने यूरोपियन अलायंस को भी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको भी एग्री कर रहा है, उनको भी परसुएट कर रहा है कि यूक्रेन को जो फाइनेंशियल एड है थ्रू आउट द वॉर विद रशिया वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी जाए। तो फिलहाल के लिए US एडमिनिस्ट्रेशन ने इस अमाउंट का प्रस्ताव रखा है। US एडमिनिस्ट्रेशन विद साइन ऑफ लास्ट वीक अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन इन ग्रांट्स टू कवर द रेस्ट ऑफ द ईयर। और अभी बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग हो रही है ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रैंड टॉपिक। लेट अस सी कि दोनों वेस्टर्न जो अलाइज हैं EU और USA वो मिल करके क्या डिसीजन लेते हैं।
So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.